So very good afternoon. In the last lecture, we have already seen about the different types of operators are available in the C programming language. In that, we have already seen arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operator. Your conditional operator is also called as a relational operator or repeat हुआ है. After that, today we are going to see about the bitwise operator. Okay. So once again, I will explain in short what they mean by operator. So operator is a symbol that tells the compiler to perform a specific mathematical or logical functions. Okay. हमारा operator क्या होता है? Operator, it is a symbol which is used to perform some specific kind of operations. So the operators are broadly classified into different types. We have already learned about the arithmetic operators. We have already seen about the arithmetic operators. So arithmetic operators are like plus, minus, multiplication, division, modulus, double plus, and double minus. So in arithmetic operators, we are having the binary operator and unary operator. So binary operator are those which will be work on a two operands, जो दो वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, दो ऑपरेंड्स के ऊपर काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस. अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की अगर आप बात करते हो तो इट रिक्वायर्ड टू वैल्यूज. इसके लिए हम लोग को दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है. इफ यू वांट टू परफॉर्म द एडिशन, सो वी रिक्वायर टू वैल्यू. इफ यू वांट टू परफॉर्म द माइनस, दैट मींस सब्सट्रैक्शन, वी रिक्वायर द two values. So likewise, that's why that plus, minus, multiplication, division, and modulus are called as a binary operator. Okay. So your difference between division and modulus operation is what? आपके दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या है? डिवीजन ऑपरेटर जो होता है, इट विल ऑलवेज रिटर्न द क्वेश्चन. ये आपका हमेशा क्या रिटर्न करता है? ये आपका हमेशा क्वेश्चन रिटर्न करता है. ये हमेशा आपको क्वेश्चन भेजेगा. एंड मॉडुलस ऑपरेशन ऑलवेज रिटर्न जो परसेंटेज साइन सिंबल आप मॉडुलस के लिए यूज करते हो. सो मॉडुलस इज ऑलवेज रिटर्न द रिमाइंडर. ठीक है, जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर, ये हमेशा मॉडुलस साइन आपका रिटर्न करता है. आफ्टर दैट वी आर हैविंग द यूनारी ऑपरेटर्स. So unary operator are those that is double plus and double minus which will be work on the single operand. जो एक single value पे काम करता है उसको हम लोग unary operator बोलते हैं. So double plus and double minus, that is double plus is an increment operator whereas double minus is an decrement operator. So a double plus plus, ठीक है, that means अगर a में 10 वैल्यू है, अगर आप a plus plus करते हो तो 11 हो जाएगी. ठीक है, a माइनस माइनस करते हो, दैट मींस a में अगर 10 है तो a माइनस माइनस करने से वो क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी. Likewise, okay. So these are the arithmetic operators. After that, we have seen the relational operator, or we can say a conditional operator. So relational operator and conditional operator are both are the same. It will check the condition between the two expression, or we can say relational operator are those which will be used to find, or which will be used to see the relationship between the two operands. Okay. So relational operator are like less than symbol. Your less than symbol. After that लेस देन है आपका. ठीक है, दैट मींस x इज लेस देन y. इफ द वैल्यू ऑफ x इज लेसर देन y, x अगर y से छोटा है तो आपका एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा. ठीक है, सो यू विल रिटर्न 1, आपको 1 मिलेगा. इफ योर एक्सप्रेशन इज फॉल्स, सो यू विल गेट द वैल्यू 0, आपको 0 मिलेगा. वैसे लेस देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू, देयर आर टू कंडीशन, either less than or equal to, that means x less than y. It means that there are two condition exist, x is less than y or x is equal to y. दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, that means you will return 1, otherwise you will get the value 0. आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. After that greater than symbol. ठीक है, so x is greater than y, अगर x का वैल्यू y से ग्रेटर है you will get 1, otherwise you will get 0. After that greater than equal to, so there is again two conditions, greater than or equal to, that means x is greater than equal to. So either x is greater than y or x is equal to y. अगर x आपका y से बड़ा होगा तो आपको 1 मिलेगा, या फिर x equal to 1 होगा, x equal to y होगा तो you will get the value 1, otherwise you will get the value 0. otherwise आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. After that double equal to, if you want to check the equality between the two variables or two operands. अगर मुझे दो वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे चेक करना है whether both the variables are having the same value or not. Suppose if I written x is equal to y, it means that x और y का वैल्यू क्या है? सेम है. अगर सेम है you will get the value 1, otherwise आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. After that not operator. ठीक है, that means not equal to. ठीक है, so x not equal to y, it means that x not equal to y,
दैट मींस जब x और y का वैल्यू इक्वल टू नहीं होगा, सो यू विल गेट द वैल्यू 1, अदरवाइज यू विल गेट द वैल्यू 0. Likewise, we are going to use the relation or conditional operator. Okay. After that, the third thing is logical operator. So again, logical operator are there in logical operator, in logical categories, we are having three operators. That is AND operator, NOT operator, and OR operator. These are the three operators: logical AND, logical OR, and logical NOT. Okay, these are the logical operator, and always the output of the logical operator is will be in the form of boolean value. Boolean value क्या होती है? Boolean value क्या होती है? Either true, आपका ट्रू हो सकता है, या फिर आपको रिजल्ट में फॉल्स मिल सकता है. ये दो में से आपको एक वैल्यू मिलेगी, आइदर ट्रू और फॉल्स. इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, यू विल गेट द आंसर ट्रू. इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, यू विल गेट द आंसर फॉल्स. यू विल गेट द बुलियन वैल्यू. ठीक है, बुलियन में कौन सी दो वैल्यूज आती है? आइदर ट्रू और फॉल्स. सो वी आर हैविंग एंड ऑपरेटर, logical and. If we are having two conditions or two expression, if we are having two expression, एक एक्सप्रेशन वन है, सपोज मान के चलते ये एक्सप्रेशन वन है आपका. ठीक है, एक्सप्रेशन वन है यहाँ पे, इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, और इसके बीच में आपने एंड लगा दिया, इसके बीच में आपने एंड लगा दिया, एंड देयर इज अगेन एक्सप्रेशन टू. ठीक है, देयर इज अगेन एक्सप्रेशन टू. देयर इज एक्सप्रेशन वन एंड ऑपरेटर आफ्टर दैट एक्सप्रेशन टू. दैट मीन्स हमने क्या किया? हमने ये एंड ऑपरेटर को दो एक्सप्रेशन के बीच में लगा दिया. दोनों एक्सप्रेशन के बीच में हमने क्या लगाया है? एंड ऑपरेटर लगाया. दैट मीन्स एंड ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट करता है? एंड ऑपरेटर कैसे एग्जीक्यूट करता है? ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 5 लेस देन 2 एंड 5 ग्रेटर देन 3. देयर आर टू एक्सप्रेशन. इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन व्हाट वी आर सेइंग? 5 2 से छोटा है एंड 5 बड़ा है 3 से. ठीक है, सो ये एंड का मतलब क्या होता है? यू ऑलरेडी नो द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड के. ठीक है, सो एंड का मतलब होता है कि आपका ये भी एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए और ये भी एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए, तो आपका आंसर में आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट आंसर ट्रू. आपको ट्रू मिलेगा. ये दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया. ठीक है, दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा. अभी देखिए कंडीशन 5 इज लेस देन 2. 5 2 से छोटा है क्या? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई. ठीक है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई. एंड 5 ग्रेटर देन 3. 5 3 से बड़ा है क्या? यस, 5 3 से बड़ा है. इट मींस दैट ये कंडीशन ट्रू हो गई आपकी. फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन आपकी ट्रू है. एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, सो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? वी विल गेट द आंसर फॉल्स. हमें फॉल्स मिलेगा. ठीक है, लेकिन आपका पहला एक्सप्रेशन भी ट्रू है, सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ही आपको आंसर में ट्रू मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट द आंसर फॉल्स. ओके, आफ्टर दैट और ऑपरेशन. ठीक है, लॉजिकल और. जैसे लॉजिकल एंड है वैसे लॉजिकल और है. लॉजिकल और इट मींस दैट when we are putting logical operator between two expression, जब हम लोग दो एक्सप्रेशन के बीच में लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करते हैं. ठीक है, लॉजिकल और का मतलब होता है आइदर दिस और दैट. ठीक है, दोनों में से आइदर फर्स्ट कंडीशन इट मे बी ट्रू, ओके, इफ सेकंड कंडीशन इट मे बी फॉल्स. ठीक है, इट मींस दैट इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है और दोनों के बीच में आपने और कंडीशंस अप्लाई किए हैं, और लगाया है, और ऑपरेटर का यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका मान के चलते कि एक एक्सप्रेशन वन आपने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, और यहाँ पे आपने और लगा दिया, और इस तरीके से और सिंबल लगा दिया, और यहाँ पे आपका एक दूसरा एक्सप्रेशन. ठीक है, एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू. सो एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू दैट मीन्स ये वाला जो है ये हमारा क्या है? ये ऑपरेटर है. व्हेन यूर दैट फर्स्ट दोनों ऑपरेशन, दोनों एक्सप्रेशन में से दैट इज E1 और E2, दोनों में से एक भी ट्रू हो गया. इफ वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, आइदर E1 और आइदर E2, दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, सो यू विल गेट द आंसर ट्रू. ठीक है, आपको आंसर में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा. ठीक है, दोनों में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, यू विल गेट आंसर ट्रू. दोनों में से दोनों फॉल्स हो गए, दोनों में से दोनों फॉल्स हुए, तो ही आपको आंसर में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट द आंसर ट्रू. ठीक है, अभी देखिए लॉजिकल और यहाँ पे 5 लेस देन 2. 5 2 से छोटा है क्या? नहीं, 5 2 से छोटा नहीं है. ठीक है, और सी फर्स्ट एक्सप्रेशन 5 लेस देन 2,
5 2 से छोटा है क्या? नहीं है, पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। और 5 ग्रेटर देन 3, यस, कंडीशन इज ट्रू, 5 ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। पहला वाला एक्सप्रेशन वो फॉल्स है और सेकंड वाला एक्सप्रेशन ट्रू है, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा? यू विल गेट आंसर ट्रू, ठीक है। इफ बोथ द एक्सप्रेशन आर फॉल्स, अगर दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स होते तो आपको आंसर में फॉल्स मिलेगा, दैट मींस और ऑपरेटर, ठीक है। आफ्टर दैट लॉजिकल नॉट, ठीक है। सो लॉजिकल नॉट का मतलब होता है इट विल गिव द पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट मींस अगर आपको पॉजिटिव आपको आंसर में ट्रू मिला है तो उसको फॉल्स बताएगा, फॉल्स अगर मिला है तो ट्रू ट्रू बताएगा, ठीक है। सो 5 इज लेस देन 2, 5 2 से छोटा है क्या? नहीं, योर आंसर इज फॉल्स। आपका आंसर क्या मिला? आपको फॉल्स मिला। आपको आंसर फॉल्स मिला तो फॉल्स का नॉट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, दैट मींस यू विल गेट द आंसर ट्रू, आपको आंसर में ट्रू मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने असाइनमेंट्स ऑपरेटर देखे थे। सो इन असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज सिंगल इक्वल टू, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंगल इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब होता है इट इज अ कंडीशनल और रिलेशनल ऑपरेटर, इट चेक्स द इक्वालिटी, वेयर सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? वी आर गोइंग टू असाइन द वैल्यू टू समवन एल्स वेरिएबल, ठीक है। सो ऑपरेटर सिंगल इक्वल टू, इफ आई रिटर्न x इज इक्वल टू y, दैट मींस द वैल्यू ऑफ y इज गिवन टू x। आप y का वैल्यू किसको दोगे? x को दोगे, ठीक है। y में जो भी वैल्यू होगा x पे स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट प्लस इक्वल टू, plus equal to, suppose if I written x plus equal to y, the meaning is x plus y, ये क्या करेगा? x plus y करेगा and result is stored into the variable x। result कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? x में स्टोर हो जाएगा। after that minus equal to, if I return x minus equal to y, it means that x is equal to x minus y, x minus y परफॉर्म करेगा, आंसर कहाँ पे जाएगा? x में चले जाएगा। after that into equal to, if I written x into y, x into equal to y, so it means that x is equal to x into y, x into y परफॉर्म करेगा एंड रिजल्ट कहाँ पे चले जाएगा? आपका फिर से x में चले जाएगा। आफ्टर दैट x डिवाइड इक्वल टू y, इट मींस दैट इट परफॉर्म्स x डिवाइड y और रिजल्ट कहाँ पे चले जाएगा? x में चले जाएगा। आफ्टर दैट x मॉडुलस इक्वल टू y, इट मींस दैट इट परफॉर्म्स x मॉडुलस y एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द वेरिएबल x। so these are some assignment operator, okay। after that we'll see a bitwise operator, it's very very important। so basically what it means a bitwise operator, you already know whatever data we are going to store into the memory or whatever values you want to store into the memory, first of all it is converted into the binary form and binary form contains the bits। अगर आपको 5 भी लिखना है, if you want to write down numerical 5, so 5 is converted into the bits, that means 5 is converted into the binary format, okay। so when we want to perform the operation on bits, अगर मुझे bits पे operation perform करना है, so at that time we will use a bitwise operator, ठीक है। so bitwise operator का मतलब ये होता है, मीनिंग ये होता है कि जब when we want to perform the operation on bit, individual bits पे जब आपको operations perform करने होते हैं, so at that time we will use a bitwise operator, ठीक है। so for that there are different types of bitwise operators are available, that is a bitwise AND operator, ठीक है। फर्स्ट आपका होता है bitwise AND, ठीक है। so bitwise AND, suppose if I written x and y, your logical AND is different and bitwise AND is different। logical AND में डबल एंड परसेंट सिंबल आप यूज करते हो, देखिए आपने यहाँ पे डबल एंड परसेंट सिंबल यूज किया लॉजिकल में, ठीक है। दैट इज अ डबल एंड परसेंट सिंबल आपने यूज किया है, ठीक है। लेकिन आप बिटवाइज एंड की बात करते हो, सो ये सिंगल एंड परसेंट सिंबल यूज करते हो, x एंड परसेंट y। सो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन? टू परफॉर्म अ बिटवाइज एंड ऑपरेशन, हमें क्या करना है? बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ये कैसे होगा? ठीक है, सिलेक्शन पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन से ऑपरेटर है। सो बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर होता है, ये सेकेंड वाला जो है ये बिटवाइज और ऑपरेटर है। उसके बाद बिटवाइज नॉट ऑपरेटर होता है, बिटवाइज एक्सऑर होता है, आफ्टर दैट लेफ्ट शिफ्ट होता है एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। सो हाउ बिटवाइज ऑपरेटर विल वर्क, बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। नाउ सी, सपोज अभी इफ यू आर हैविंग टू इनपुट्स, हमारे पास एक a वैल्यू है, एक b वेरिएबल है, ठीक है। एक a नाम का वेरिएबल, एक b नाम का वेरिएबल, सपोज वी आर हैविंग सम सर्टेन वैल्यूज, ठीक है। नाउ यू ऑलरेडी नो अबाउट द लॉजिक गेट्स, जो सेम आप लॉजिक गेट्स यूज करते हो, सेम कॉन्सेप्ट्स आर एप्लीकेबल हियर,
ठीक है, आपके सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं। सपोज इफ आई वांट टू परफॉर्म ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, जैसे यहाँ पे देखा हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है एक्स एंड वाई, दैट मीन्स एक्स का जो डेटा है y की डेटा के साथ मुझे एंड करना है, एंड करना है, दैट मींस बिटवाइज एंड परफॉर्म करना है। x में कुछ वैल्यू है, y में कुछ वैल्यू है, तो x की जो वैल्यू है बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी, y की जो वैल्यू है बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होकर उसमें मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, सो मान के चलते हमें ट्रूथ टेबल पता है, एंड का क्या होता है कि अगर आपके पास a में 0 है, b में 0 है, तो यू विल गेट आंसर 0। ठीक है, अगर आपके पास दोनों इनपुट अगर 0 है तो आपको आंसर 0 मिलता है। ठीक है, if one of the input is 1 then also you will get the answer 0। ठीक है, आपको 1 कब मिलेगा, जब आपके दोनों इनपुट्स 1 रहते हैं तो ही आपको आउटपुट में 1 मिलता है इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं लॉजिकल एंड की बात करता हूं, सो व्हेन वी आर डूइंग द बिट ऑपरेशन, बिटवाइज ऑपरेशन, सो एट दैट टाइम व्हेन योर बोथ द इनपुट्स आर 0 0, ठीक है, ए में 0 है, बी में 0 है, तो आपको 0 मिलेगा, ए में 0 है, बी में 1 है, तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, बिकॉज इफ वन ऑफ द इनपुट इज 0 दैट मींस यू विल गेट द 0। ठीक है, इफ a is 1 b is 0 you will get the answer 0। when a is 1 b is 1 you will get the answer 1। जब दोनों इनपुट्स 1 रहेंगे तो ही आपको 1 मिलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट a और b, ठीक है, दैट मींस नाउ और ऑपरेटर्स। सो और का मतलब क्या होता है, दोनों में से आइदर ए और बी में से एक भी इनपुट आपका 1 हो गया, सो यू विल गेट द आंसर 1। जब दोनों 0 रहते हैं एट दैट टाइम यू विल गेट द आंसर 0। ठीक है, दैट मींस आप देखिए ए इज 0 एंड बी इज 0, यू विल गेट आंसर 0। ठीक है, इफ ए इज 0 बी इज 1 यू विल गेट आंसर 1। ठीक है, एक भी 1 हो गया, एक भी इनपुट आपका 1 हो जाता है तो आपको आंसर में 1 मिलेगा। इफ ए इज 1 बी इज 0 यू विल गेट आंसर 1। आफ्टर दैट व्हेन ए इज 1 एंड बी इज 1 यू विल गेट द आंसर 1। Likewise, that means OR। now XOR, ठीक है, सो XOR का मतलब क्या होता है, XOR, और का एग्जैक्टली अपोजिट। देखिए OR का ट्रूथ टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, और में क्या है, 0 0 होगा तो 0 मिलेगा, 0 1 होगा तो 1 मिलेगा, 1 0 होगा तो 1, एंड 1 1 होगा तो 1, सिंपली XOR। ठीक है, XOR का मतलब होता है व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, either it is 0 0 either it is 1 1। देखिए a 0 है, b 0 है, you will get the answer 0, आपको आंसर 0 मिलेगा। जब दोनों इनपुट पे सेम वैल्यू होती है so you will get the answer 0। देखिए a पे 1 है, b पे 1 है, तो आपको आंसर में 0 मिला है। ठीक है, बट व्हेन द बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट, एक 0 है, जैसे a 0 है, a b 1 है, so you will get the answer 1। when a is 1 b is 0 so you will get the answer 1। that means कहने का मतलब ये कि when you are having both the inputs on the same value, दोनों इनपुट्स पे अगर आपका सेम बिट्स होती है, ठीक है, सो आपको आंसर में 0 मिलता है। और अगर आपके पास दोनों इनपुट पे अपोजिट, दैट मीन्स दोनों इनपुट पे आपके पास डिफरेंट वैल्यू है, दैट मीन्स 0 और 1, सो आपके पास जो आंसर आएगा इट विल बी द 1। ठीक है, दैट मीन्स द XOR ऑपरेटर। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल का सिंबल होता है उससे आपका XOR ऑपरेटर डिनोट किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट इन नॉट ऑपरेटर, ठीक है, दैट इज टिल्ट सिंबल। ठीक है, ये टिल्ट सिंबल जो है, ये इस तरीके से टिल्ट सिंबल आप नॉट ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। ये आपके कीबोर्ड पे टिल्ट सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, सो नॉट ए, दैट मीन्स अगर ए पे 0 होगा तो आंसर में 1 आ जाएगा, और 1 होगा तो आपके आंसर में आपको 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स नॉट। ठीक है, so these are the different bitwise operators are available। one more thing is that now इसके अलावा after that we are having the left shift operator and right shift operator। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है और राइट शिफ्ट ऑपरेटर कौन सा है, ठीक है, सो दैट इज अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये नीचे क्या है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर आप 2 बार लेस देन सिंबल प्रेस करते हो, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट शिफ्ट और ये हो जाएगा राइट शिफ्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नाउ सी। ठीक है, यहाँ पे सो बिटवाइज ऑपरेटर में लेफ्ट शिफ्ट हम लोग देखते हैं, सो दैट इज द सिंबल यूज फॉर द लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। सो दैट सिंबल विच इज यूज एज एन लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये वाला सिंबल लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए आप लोग यूज करते हो। सपोज मान के चलते हैं वी आर हैविंग एक्स में हम लोग के पास 7, एक एक्स वेरिएबल है जिसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है, जिसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है, 7 है। ठीक है, एक्स में 7 वैल्यू स्टोर्ड है। अगर मैं 7 का बाइनरी लिखता हूँ, ठीक है, अगर 7 को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, 8 बिट्स अगर निकालता हूँ मैं, सो वैल्यूज क्या मिलेगी मुझे,
ठीक है। सो आप 4 के आप ऑक्टल्स बनाएंगे, ठीक है, एक 1 ऑक्टल है ये पूरा, ठीक है, या फिर 1 बाइट है, ठीक है। आपको ये पता है कि अगर दैट मीन्स डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, अगर आपका 0 वैल्यू है तो 0 का बाइनरी क्या होता है 000, ठीक है, 1 का 0001, आफ्टर दैट 2 का क्या होता है 0010, 3 का क्या होता है 0011, 4 का क्या होता है 0100। लाइकवाइज इस तरीके से हमारी बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट होती है। ऑलरेडी आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिजिटल सर्किट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये एक्स में 7 वैल्यू है, ठीक है। सो ये बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये आपको करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी इंटरनल आपका प्रोसेसर खुद ब खुद कर लेता है। सो एक्स का बाइनरी क्या होता है, देखिए 00000111, ठीक है। दैट मीन्स ये कैसे निकाला, ठीक है, ऑलवेज ये 2 टू द पावर के फॉर्म में आता है। दैट मीन्स ये पहला वन जो आएगा ये 2 टू द पावर 0, ठीक है। सेकेंड वन जो आया है ये 2 टू द पावर 1, ठीक है। उसके बाद ये जो वन आया है 2 टू द पावर 2, ठीक है। दैट मीन्स 4 4 5 प्लस, ठीक है, ठीक है। सो अगर एडिशन करते हैं तो 7 आता है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0000, ठीक है। सो ये 7 का क्या है हमारा बाइनरी है, ठीक है। सो ये वैल्यू 7 है, एक्स में क्या स्टोर्ड है 7 है, ठीक है। इफ आई अप्लाई x इज इक्वल टू एक्स शिफ्ट बाय 1, ठीक है, हमें ये शिफ्ट ऑपरेटर के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती है कि कितने से शिफ्ट करना है आपको वैल्यूज, लेफ्ट शिफ्ट, यानी लेफ्ट से आपको क्या करनी होती है वैल्यूज को शिफ्ट करना है। इफ आई रिटर्न x इज इक्वल टू एक्स लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है, इट मींस दैट x में जो वैल्यू होगी, x में जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट शिफ्ट होगी कितने से 1 बिट से, एक बिट से वो लेफ्ट शिफ्ट होगी, ठीक है। दैट मींस देखिए पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास 00000111, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, दिस इज योर ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। अगर मुझे इसमें से लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, नाउ मुझे अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है, जैसे मुझे अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है, सो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हुआ, ये पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हुआ, ठीक है। दैट मींस लेफ्ट शिफ्ट करना है, दैट मींस लेफ्ट का एक बिट उठ के कहां पे अपेंड हो जाएगा, दैट मींस ये वाला आपका ओरिजिनल वैल्यू है, तो यहां का एक बिट उठ के आपका कहां पे अपेंड हो जाएगा, यहां पे अपेंड हो जाएगा, देखिए यहां पे लग जाएगा। दैट मींस देखो यहां पे 0 निकल के ये कहां पे पुट हो गया, सामने में 0 पुट हो गया, ये आपका 0 यहां पे लग गया, ठीक है। यानी लेफ्ट का एक 0 निकल के आपका राइट में, दैट मींस लास्ट में जाके अपेंड हो गया, ठीक है। लास्ट में जाके अपेंड हो गया तो एक्चुअली ये जो पूरा वैल्यू आया है, ये जो पूरा वैल्यू फिर किसका है, ठीक है, ये पूरा वैल्यू किसका रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू किसका है, ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 0, दैट मींस 2 टू द पावर 0, सेकंड वन 1 है तो 2 टू द पावर 1, उसके बाद 1 है 2 टू द पावर 2, उसके बाद क्या है 1 है 2 टू द पावर 3। सो ऐसा अगर पूरा इसका एडिशन देखते तो विल गेट द आंसर 14। सो ये जो कोड है 00011110 ये 14 का कोड है। अभी यानी आपके x में वैल्यू क्या चले गया, अभी आपके x में वैल्यू क्या आ गया 14 आ गया, पहले 7 था, फिर आपने उसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो आपका आंसर क्या मिला आपको 14, यानी आपका जो x वैल्यू है उसमें क्या आंसर आया आपके पास अभी 14 आंसर आया, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। दैट मींस अभी x में जो वैल्यू है उसको हमें कितने से शिफ्ट करना है 3 से शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट 3 करना है, ठीक है। दैट मींस, ठीक है, अभी x में फिलहाल क्या है, अभी हमारे x में ये वाला वैल्यू है पूरा, ये देखिए ये वाला वैल्यू है, ठीक है, ये वाला पूरा वैल्यू है x में हमारे, ठीक है। दैट इज 00001110। राइट नाउ वी आर हैविंग x में 14 है, ठीक है। अभी मुझे x की वैल्यू को 3 बीट से शिफ्ट करना है, वो भी लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। सो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लास्ट 3 बीट जो है, आपके लास्ट 3 बीट को, आपके जो लास्ट 3 बीट्स है दैट मींस ये वाले, ये आपके जो ये 3 लास्ट वाले बीट है ये वाले, ये ठीक है 000, ठीक है। सो पहला 0 निकलेगा, फिर यहां पे आया वो 0, ठीक है, फिर सेकेंड 0 पहला 0 निकला, ये यहां पे पुट हो गया, ठीक है, फिर सेकेंड 0 निकला, ये फिर से यहां पे आ गया सेकेंड 0, ठीक है, फिर से तीसरा 0 निकला, ये तीसरा 0 यहां पे आ गया,
ठीक है। सो 3 जीरो ऐड हो गए, ठीक है। सो अभी लास्ट के 3 जीरो निकल के आगे में अपेंड हो गए वन बाय वन, सो यू विल गेट आंसर 112, यानी अभी x में वैल्यू क्या है आपके पास 112। दैट मींस 2 टू द पावर 0 इज 0, 2 टू द पावर 1 is 0, 2 to the power 2 is 0, 2 to the power 3 is 0, 2 to the power 4 is 0, 2 to the power 2 to the power 4, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। 2 to the power 5 is 1 and 2 to the power 6 is 1, यानी जितने बार 1 है उसके पावर में 2 लगा दो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, दैट इज यू विल गेट आंसर 112, ठीक है। आफ्टर दैट अभी आप x इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्ट 2 करते हो, दैट मींस आपकी ये जो लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, जैसे ठीक है। अभी देखिए आप अगर ये परफॉर्म करते हो x लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी अभी x में वैल्यू कौन सा है 112 वैल्यू है, यहाँ पे 112 वैल्यू है, ठीक है। x में 112 है, 112 वैल्यू है आपके पास, आपने उसको क्या कर दिया लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, ठीक है। 112 का बाइनरी क्या होता है, ये 112 का बाइनरी होता है, दैट इज 0 ट्रिपल 1 4 टाइम्स 0, ये बाइनरी हुआ। अभी आपको शिफ्ट कितने से करना है 2 से करना है, 2 से करना है तो पहले क्या निकलेगा, पहले 0 निकलेगा, पहले 0 निकल के कहां पे इधर अपेंड हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 1 निकलेगा, ठीक है, यहाँ से 1 निकलेगा, और ठीक है यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले कितना दिया हुआ है 0 1 1 0, यहाँ पे आपका पहले 0 पुट हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट एक बिट फिर से आपका सामने आएगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, पहला आपका यहाँ से 0 निकला, दैट मींस यू विल गेट आंसर 111 4 टाइम्स 0, ठीक है। सी यहाँ पे क्या हुआ कि पहले यहाँ पे 0 जाएगा आपका, यहाँ पे 0 आया आपका, ठीक है, तो एक बिट इधर चले गया आपका, ठीक है। दैट मींस फर्स्ट बिट शिफ्ट हुआ तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3 1 एंड 5 टाइम्स 0, ठीक है। दैट मींस 4 टाइम्स 0 पहले से एक 0 ऐड हो गया 5 टाइम्स 0, ठीक है। फिर से यहां से 1 निकलेगा, ठीक है, दैट मींस 2 टाइम्स 1, ठीक है, यहां से 1 फिर से ऐड हो जाएगा, दैट मींस यू विल गेट आंसर दिस वन, ये आपका यहां ऐसे आएगा, ठीक है। ये 1 है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, सो यू विल गेट आंसर 192, so you will get the answer 192 after doing the left shift by 2। so these are the different types of left shift और right shift। अब ये left shift हुआ, वैसे ही हम लोग right shift के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, this one symbol is used for right shift, ठीक है। तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, अभी आपने क्या किया लेफ्ट शिफ्ट में यहां से वैल्यू उठाया और इधर अपेंड करते गए, यहां लगाते गए, ठीक है, राइट लेफ्ट शिफ्ट में, ठीक है। लेफ्ट का वैल्यू इधर राइट हैंड साइड में आपने अपेंड करते गए, ठीक है। राइट शिफ्ट में क्या होगा, राइट शिफ्ट में इधर से वैल्यू उठाना है और वो कहां पे लगाना है आपको, इधर लगाना है, ठीक है, इधर, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा आपका, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब लेफ्ट से वैल्यू निकलेगा, इधर वैल्यू आपका अपेंड होगा, और राइट शिफ्ट में क्या होगा आपका इधर से वैल्यू निकलेगा, इधर से वैल्यू निकलेगा और शिफ्ट कहां पे होगा, इधर हो जाएगा, इस तरीके से। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल, sorry, these are the different types of bitwise operator, ठीक है। after that we'll see so so everybody got it, now we'll see some few examples. Today we will stop here, okay, so thank you one and all.